Hello everyone, can you hear me? Let me see. Hi, can you hear me? Yes, if you can, maybe you can give me thumbs up. Thumbs up, not down. Okay, great. Okay, so by the time, let me just close this window right now. By the time people join, we shall do some fun. Okay, before we come to the main agenda of today, before that we will have some fun. So this game we will play, but can you tell me what is the topic of today's session? Anyone, just raise your hand. What is the topic? What is the topic, Reyansh? Yes, sir. Sir, today's topic is about entrepreneurship. Entrepreneurship. Okay, Krisha, what do you mean by entrepreneurship? Say whatever you feel. Huh? Entrepreneurship means What? running a business. Entrepreneurship means, Krisha. Running a business. Running a business. Okay, great, good. Who else is? Reyansh, another Reyansh. Okay, two Reyansh. सेकंड रेयांश कहाँ से है? वो भी सेम आंखों में चश्मा भी है दोनों के. यस, रेयांश सिंह. Sir, entrepreneurship means solving problems with our creative ideas. Yes, very nice. Solving problem with our creative ideas. Great. Any problem do you see around you that you want to solve? Anything that you feel that, okay, that's the problem. One day I will definitely solve this problem. Pritam would like to say something. Pritam? हाँ सर. हाँ बोलो, क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब? इतना कुछ पता नहीं यार, तो ऐसा क्या मुझे पता नहीं, इसलिए तो आया हूँ. वाह, ये तो बहुत ही ऑनेस्ट आंसर है. प्रीतम, अपना फेस भी दिखाओ एक बार. अब चलो, कैमरे के पीछे बैठे हो, फेस तो दिखाओ फिर. हाँ, तो आए हो तो फिर फेस छुपा के क्यों बैठे हो, है ना? हाँ? आए हो तो कैमरा ऑन करके बैठो, तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम आए हो, इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हो और पीछे छुप के बैठोगे. ऐसे नहीं, कैमरा ऑन करो. ठीक है? ओके, अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे. उसके बाद फिर हम हमारे जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर वो आपके लिए जो भी अपना मसाला और जो भी अपने बैग में उनके जादू का पोटली है वो खोलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब. Okay, fine. So let's play this game. We haven't played it in this, in this version of Vivek Shala. Last year शायद हमने खेला था, अभी नहीं खेला है. तो this game का नाम है Spin the Wheel. So we have to be little prepared that we have to do some physical fun. Okay, बैठ के नहीं होना है ये game. So listen to me carefully. Instructions: as soon as I say that you have to bring me something, you will just run and bring it. Okay, I will spin the wheel for you. और जैसे ही वो एक wheel घूम के सीधे एक लाइन पे आएगा, जो भी वहां पे लिखा होगा वो आपको करना होगा. ठीक है? नाउ आई एम कंट्रोलिंग यू लाइक आवर मंकी माइंड कंट्रोल्स अस. एवरी मॉर्निंग वी डू मेडिटेशन just to take that control back. Now I am controlling you with this game. So I'll share this screen with you and then I will start spinning the wheel. Okay? चलो, थोड़ा एनर्जाइज हो जाएंगे सेशन से पहले. अभी सब खाना खा के आए हैं, नींद भी लग रहा है किसी को कुछ हो रहा है, तो अभी सब चला जाएगा. स्पिनिंग द व्हील. Okay, do you see the screen? Give me thumbs up if you can see the screen. Okay, great. So as I said, I will spin the wheel and within 5-10 seconds I will give you, and you have to just rush wherever you find that object or whatever activity I want you to do, you do it. Okay, chalo, let's start. I'll spin the wheel. Amal sir, can you make their videos while they're doing it? Camera se banana. Okay, let's see.
It looks like an infinite wheel. ये तो रुक ही नहीं रहा है. Oh no. Finally. What's that? What happened to it? Our wheel is not working. Oh, there is some lag, I think, because I can't see it. Can you see this? Something, some glitches. I don't know what happened. Oh no. It's not working. It's not working. Anyways, we don't need wheel. Can you hear me? Yes? Okay. So my first thing is, give me something that is blue and I can wear. Go and get something blue that I can wear. Remember my size, okay? Don't bring something that fits you. I want something that I can wear. हाँ, कोई सलवार कुर्ता मत लेके आना मेरे लिए. Yes. What's that? Devansh has got a t-shirt. Nice, very good, beautiful blue t-shirt. Yes, cap, I can wear that. Yeah, pajama, I can wear that blue pajama. Okay, great. I said blue, not gray and white. Very nice, very nice. देखिए second window में कौन मेरे लिए क्या लाया है? Okay. Nice. Very nice jeans. I like the jeans. Yes, I'll wear your school uniform and I'll go to your school on your behalf. Great. ओके रख दो उसको साइड में. अभी पाइल बना देंगे सारी चीजों का हम अपने बेड के बगल में. ओके नाउ माय सेकंड थिंग, गिव मी समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड आई कैन होल्ड इट. Something that is made of metal and I can hold it. Yes, spoon is something I can hold it. Yes, very good. Water bottle, spoon and compass. Yes. Keys I can hold. Yes, of course. Headphones are made of metal. Yes, some part of it of made of metal. Then glass. Very nice. Very good. Nice. Okay. Now my third thing. Bring me something that is red and I can eat. Get something from me. Go get from kitchen. जाओ मम्मा को बोलो कुछ लाओ सर के लिए, थके हैं वो. Yes. Tomato. Yes, I can eat that. Yes, tomato I can. सब tomato ही खिला रहे हैं मुझे. Tomatoes are so cheap these days. Everyone is. Yes, I want apple. Good, very nice. Jam I can eat. ये क्या है? अनिका प्रसाद ने क्या लाया है? Ketchup. Okay, I can eat that as well. Fine, very good. सब tomato खिला रहे हैं मुझे. वही vitamin C मिलने वाला है मुझे. Okay, उसको भी साइड रख दो अभी. Okay, bring me something that is made of plastic and it's useful. What's that? It's made up of plastic and it's useful. Yes. Stationery box is one. Pen, scale, AC remote, charger. Very nice. Frisbee. Okay, great. Fifth, get me your favorite thing. Go and get me your favorite thing, whatever it is. Go and get me. Yes, smartwatch. And I want it, I'll take it from you. It's your favorite thing, I'll take it from you. Okay, ball. Yes, nice. Reyansh Singh ने वो दिखाया है. This is also मेरे पास भी है देखो. Okay. So it has become his favorite now. Very good. Okay. Yes. Rubik cubes. Now, very nice. Excellent. Okay, bring me something that is yellow and I can wear on my head. ये tough हो गया. Bring me something that is yellow and I can wear on my head. Yes, orange भी चलेगा. किसी ने पहना है लग रहा है मुझे ऑरेंज. वो यहाँ वहां देख रहा है लेकिन वो उसको पता नहीं चल रहा है कौन है वो जिसने अपना यूजर नेम ही इंडस क्वालिटी फाउंडेशन लिखा. देवांश शुक्ला हैज गॉट अ वेसल फॉर मी. मैं उसको अपने सर पे कैसे पहनूंगा?
So creative, very good. Okay. Great, great, nice, 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 very nice. Second window में देखें कौन क्या लेके आया है. Okay, okay, very good. Okay, last time, one last. Ready? Bring me a battery. Bring me a battery. My battery are drained now. You bring me one. वंशिका ने बस जेब में ही रखी थी, पॉकेट से निकाल के दिखा दिया ऐसे. ओके, सब चले गए बैटरी के नाम पे. एसी रिमोट में से निकाल लो बैटरी. ओके, गुड. कम बैक एवरीवन. नाइस, यू गाइज आर सो फास्ट. सो मच एनर्जी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कुछ लोग तो ऐसे स्पाइडरमैन की तरह अपना वेब फेंक रहे हैं और ऐसे चीजें लेके आ जा रहे हैं. दे आर नॉट इवन मूविंग एंड देन दे आर जस्ट शोइंग इट. ये आई हैव इट. चलो, ग्रेट. कम बैक एवरीवन. सब उथल पुथल मचा दिया घर में आप लोगों ने. अब सब बोलोगे अचानक से क्या हुआ इसको, अभी तक तो बैठा था, हर बार तो चुपचाप से बैठता था ये. ओके, नाउ शांत हो गए अब हम लोग, एनर्जाइज हो गए. चलो, ओके, सो लेट्स बिगिन. टुडेज टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, तो अभी आप लोगों ने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन बताई, दैट एंटरप्रेन्योर इज समवन हु कैन ब्रिंग चेंज बाय डूइंग what? By creating some ideas. So अभी आप लोगों ने कितने अच्छे ideas create करे ना. I said something and you did it. Okay, so welcome everyone. Today's super duper session at Vivek Shala, and like all other session, this session is also going to be an exciting one and interesting one. So I want all of you to take your notebook and pen ready, because you are going to participate in several activities. Couple of activities we have planned for you and in group. So अभी इतने समय के बाद it's an opportunity that you will be in a group, okay, divided. और कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा. तो अभी आपको एक opportunity मिलेगा उन सब बच्चों के साथ interact करने में, and you will share your ideas. Okay, I asked the question, what's entrepreneurship, and you gave beautiful answer. So I would like to add on that. Okay, so my answer would be, if somebody asks me what is entrepreneurship, then I will just answer like a child. I will say that it's like being a superhero of ideas. Superhero होता है ना, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, अलग अलग सुपर हीरोज होते हैं. तो सुपर हीरो ऑफ आइडियाज. जैसे हमारे सुपर हीरो कौन है विवेक शाला के? हु इज आवर सुपर हीरो? यू नो दैट? यस, जो हाथ हिला रहे हैं, पता है मुझे. अच्छा, कैन यू मेक पोस्चर ऑफ आवर सुपर हीरो? कल सीखा था हमने. कैन यू ऑल मेक दैट पोस्चर ऑफ आवर सुपर हीरो? या, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, ग्रेट. तो अभी सबको पता है. तो हमारे सुपर हीरो ने आज हमें क्या बताया था? आज मॉर्निंग सेशन में सारे बच्चे तो नहीं आए थे, पर हमारे सुपर हीरो ने आज मॉर्निंग सेशन में हमें बताया था कि हम कोई भी काम जो करते हैं उसका जो मोटिव होता है, उसका जो पर्पस होता है, दैट शुड नॉट रिवॉल्व अराउंड आवर नीड्स. ओके, उसका पर्पस सेल्फलेस होता है. दैट इज व्हाट वी लर्न, राइट? आज के कोर्ट में भी हमने ये सीखा. देन वी वॉच दैट ऑडियो विजुअल, जो आप लोगों ने बोला कि बस हमें देखते ही रहना है, और हमारा सेशन खत्म हो गया था और आप लोग उसको बस देखते ही रहना चाहते थे और 12 बजे तक देखना चाहते थे. बड़ी मुश्किल से सेशन खत्म किया, लेकिन हम उसको कल देखेंगे बाकी का. ठीक है? तो हमारे सुपर हीरो ने हमें बताया कि उन्होंने हमें ये बोला कि हमें जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो तो हमें फुलफिल होंगे, जो भी हमारी स्किल्स हैं, जो भी हमारे गुड क्वालिटीज हैं, विल बी एबल टू डू दैट जस्ट लाइक सुपर हीरोज. ओके, बट ही सेड दैट if we are making those efforts just to fulfill our need or just to satisfy our purpose, then there is no point behind it. So he said that the most important aspect is to do it for others, serve others. And when we serve, then you should not have that attitude of either feeling pity or having a sense of pride that I am helping that person. So he said that it's an opportunity for us, and it's an opportunity that the person who is in need, the person who needs help, has come to us, had provided that opportunity to us so that we can serve him as God. यही बोला था. तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एंटरप्रेन्योरशिप पे लगाएंगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट creating fortune for yourself, but it is also about helping others.
it is also about finding different ways to help others solve problems and make the world a better place. एक example, जैसे आपने एक robot create किया, okay, you created that robot and you involved a new technology and then you got a copyright, a patent, I would say. तो जब आपने patent करा लिया, सब करा लिया, तो अब कोई इसको copy नहीं कर सकता. But what you can do is उस technology को आप किसी को भी दे सकते हो and you can create fortune for yourself. Now people can use your technology and then they can put that concept in their work and then they can use it and you will get money. But the purpose is, if your robot can solve some problems that has already prevailed in our society. For example, एक ऐसा robot जो clean करे पूरा बाहर, जो गंदगी है उसको segregate करे, clean करे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो community है उसमें contribution होगा. तो this is a kind of purpose where you can put entrepreneurship and direct it towards this spirit of service. ठीक है? So now I would like to introduce to you our guest of today's session. So his name is Shri Vishwarup Bhattacharya ji, and he is a kind of friend to IQF, a well-wisher, and he is the. I hope you can see the screen. No, you can't see. Okay, let me share the screen. Can you see this? Yes. Okay. So he is an alumni of the fabled St. Columba's School, New Delhi, and Delhi University. And he holds dual masters in commerce and business management, coupled with the fact that he has over 24 years of experience in the field of finance and accounting, communication, and business networking. Previous to joining Team Strategize, because he is one of the founders, he has worked extensively with the Foundation for Innovation and Technology Transfer, FITT, established by the Indian Institute of Technology, Delhi, in various capacities from 1998 till 2022. It was from here that his entrepreneurial knowledge took proper shape and form. Apart from his acting skills, he is into acting also. Sri Bhattacharya ji is an avid writer of short stories, and a few of his stories have been converted into films too. Not a lag behind in the field of technology, he has developed 2 medical responder applications and holds their copyrights, waiting for commercialization. तो अभी हम जिनसे मिलने वाले हैं वो एक ऑल राउंड पर्सनैलिटी हैं. उनका इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में है, इसके अलावा भी उनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और क्रिकेट भी उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, ये पर्सनली मुझे पता है. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हिम and I will give him the forum, and now your journey of entrepreneurship starts. Just a second. Please unmute yourself. I will make you co-host as well. Am I audible? Yes, you are. Good. So a very good evening to all the kids and the future of India. Hi. I have given you the spotlight so that they all can see you. Okay. So पंकज जी ने बहुत कुछ बताया जो मैं सोच रहा था मैं ही बताऊंगा. But Pankaj ji, he is himself an all-rounder, and he's also had his own business before joining IQF. So I am actually, I started this company in 2021, and I joined Team Strategize as a co-founder last year. And हमारे साथ 2 more co-founders, Malavika Sengupta ma'am and Mona Lisa Malik ma'am. हम तीनों ने ये स्टार्ट किया है और हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं
मिसेस पूजा भाटिया मैम। हम लोग 4 लोग हैं, हम लोग इसको संभाल रहे हैं। So before we go into the next round of actually understanding what entrepreneurship is, एक छोटा सा फिल्म है जो मैं चाहता हूं आप लोग देखें। पंकज जी, हेलो। पंकज जी, Yogo Talks. Eagle and Estrella in Entrepreneur. Hey, Eagle, I have a joke for you. Hi, what's your joke? Why did the chicken cross the road? Why? Because he thought it would be an excellent idea. You know, Estrella, I have some excellent ideas of my own. I think someday I'd like to become an entrepreneur. What's that? It's someone who has a great idea and decides to start a business. Anyone can do it. Many entrepreneurs are creative and like to take on new challenges. First, you would think about a problem in people's lives and brainstorm the best way to fix it. Then build a model to show to others and to share your plan. Next, you present what your vision is, what problem it solves, and how it will help other people that might invest in your idea. This process is called pitching. It's a great way to show off all your hard work. If the people like my pitch, they'll lend me the money to start a business and make my idea easy for everyone to buy? Yes! Being an entrepreneur is really cool because you get to use your brain to help others. And there are an unlimited number of problems to be solved. We can both be entrepreneurs if we want, and there's lots of room for other kids to become one too. I have to say, I think becoming an entrepreneur sounds excellent. So kids, आप लोगों को एक बार बताइए, what according to you is the basis of entrepreneurship? आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, what is the foundation? आप किस चीज को फाउंडेशन बनाकर आप entrepreneurship करना चाहते हैं? बताइए, let's see. कौन बताएगा? What is the basic primary fact जिसके ऊपर आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? Okay, I can see few people have raised their hands, so I'll ask them. So we have Lovely. Samarth Singh is raising hand, so I'll give him. Radha, maybe you can change your view so that you can see them as well, because can't you Yeah. see? I can see them now. Okay, I can fine. see them. Yes, Samarth. Yes, sir. Yes. Answer the question. Could you please repeat the question? I couldn't hear it. Okay. So अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, Yes. अपना तो Yes, उसके sir. लिए बेसिक फाउंडेशन क्या होना चाहिए? आप किस Sir. चीज, हाँ बताओ. Sir, the basic foundation of starting a business would be a creative and creative idea which no one is in that market, and target a market which is not very targeted. Very good. Or very good answer. Anyone else? Ruhanika. Ruhanika, again, unmute yourself, beta. Proper planning must be done. Okay, she said proper planning. This is Proper what I planning. heard. Yes. Very good. Okay. We have Devansh Shukla. हाँ बताओ Devansh. What is the meaning of foundation? फाउंडेशन मींस बेस. क्या आधार है कि आप एक अपना बिजनेस जो स्टार्ट करेंगे किस पर वो आधारित है? जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई इज योर बेस फॉर योर फ्यूचर नॉलेज एंड जॉब.
वैसे ही अगर आपने अपना बिजनेस खोलना चाहते हो तो उसका बेस क्या होगा, उसका फाउंडेशन क्या होगा? ओके, अगर किसी को नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम सर नहीं, विल कोई एक्सप्लेन प्रॉब्लम। एवरीथिंग, डोंट वरी. ओके, लास्ट नेम, लेट्स टेक जिया. Jia, can't hear you. Maybe you can keep your mic near to your, yes. So now, Yeah, Yes, now. audible. Yeah. so we can identify a needs in the means our business to work to fulfill it. Very good, very good, very good answer. So ये डिस्कशन के बाद हमको ये पता चलता है, एक तो है आइडिया हमको चाहिए और वो एक प्लान्ड आइडिया होना चाहिए. हमने आइडिया सोच लिया और उसको बिजनेस में तब्दील कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता. एक आइडिया होना चाहिए जो हम इम्प्लीमेंट कर सकें. एक वायबल बिजनेस प्रोपोजिशन होता है, उसको हम कर सकते हैं. हमने सोच लिया कि हम 10 बार जंप करेंगे, इससे जो एनर्जी जनरेट होगा उससे हम लाइट जलाएंगे. आइडिया खराब नहीं है, आइडिया इज गुड, बट 10 बार जंप करने से जो एनर्जी होगा उससे आप लाइट नहीं जला सकते हो. आप जब जंप करते हो एनर्जी पैदा होती है ना, तो उससे आप लाइट भी जला सकते हो, लेकिन आपको बहुत बार, ज्यादा बार जंप करना पड़ेगा और बहुत फास्ट जंप करना पड़ेगा, तब जाकर वो एक लाइट, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो एक ऐसा आइडिया करना चाहिए जो हम कर सकते हैं. जैसे अभी पंकज जी ने बताया, आपने एक रोबोट बनाया, रोबोट जो घर का पूरा काम कर सके, घर का काम कर सके और हमारा इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर सके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हमने रोबोट बना दिया, बट वो क्या काम करेगा? वो उस रोबोट को कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? ठीक है. तो आप जब आइडिया बना रहे हो, उसमें एक और बात आपको सोचने की जरूरत है कि उसका कॉस्टिंग क्या होगा. आप कॉस्टिंग से, आपको पता है कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होता है, बताओ? कॉस्ट प्राइस पढ़ा है आपने स्कूल में? Angel. Cost of the product means the price of the product, like a comb. तो हमें कॉम की प्राइस जो है उसके हिसाब से रखनी चाहिए. जैसे कि कोई भी एग्जांपल, उसकी प्राइस उससे रिलेटेड ही रखनी चाहिए. ओके. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट होता है जो लागत उस कोम को बनाने में लगता है. ठीक है. अगर हमको एक कोम बनाने में 100 रुपए लगता है और हमने उसको 110 रुपए में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ, बताओ? Yes, Krisha. Sir, cost price means the price of meeting a good. ओके. नहीं, आप बताओ, आपने अगर एक कोम बनाने के लिए आपका खर्चा हुआ 100 रुपए और आपने उसको 110 रुपीज में बेचा, तो आपका मुनाफा या प्रॉफिट कितना हुआ? बताओ प्राची, बताओ. 10 rupees. वेरी गुड. तो कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि उससे हमको प्रॉफिट होती है कि नहीं. अगर उसमें हमको कोई प्रॉफिट नहीं होती है और सिर्फ खर्चा ही होता है, तो वो करने की हमें क्षमता है ही नहीं. उसको वो करना ही नहीं चाहिए. एक तो मुनाफा अपने लिए होना चाहिए, दूसरा मुनाफा होना चाहिए, अगर हमको नहीं हो रहा है
सोसाइटी को हो रहा है। और हमारे बीच में सबसे बड़ा सोशल एंटरप्रेन्योर कौन है बताओ? सोचो, सोशल एंटरप्रेन्योर जो जिन्होंने एक चीज बनाया, उसमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन वो सबको हेल्प करता है। स्वामी विवेकानंद जी, उनका नाम सुना होगा ना आपने? Am I correct? उन्होंने क्या बनाया बताओ? Yes, Aishvi. सर ये पहले क्वेश्चन के लिए था, अभी मुझे पता नहीं। अच्छा अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बनाया? अन्यथा. Swami Vivekanand makes people strong. Yes, Rayan Singh. यस गाइस, क्या हो गया? शांत क्यों हो गए सब? Rayan Singh. अमल रहने दो, आप, मैं कर दूंगा उनको। Okay, sir. यस रेयांश, अनम्यूट। कोई भी रेयांश, दोनों ने हाथ खड़ा किया है। अनम्यूट। यस, Yes, sir. अभी अभी एक भी नहीं कर रहा था, अभी दोनों रेयांश ने अनम्यूट किया है। चलो रेयांश, रेयांश पाहुजा पहले बताओ। Okay, sir. Sir, Vivekanand ji created knowledge that he has given to us by Vivekshala. ओके, नाउ रेयांश सिंह। Sir, Swami Vivekanand created a goal to help us, the poor people, not us. Okay, very You good. want more? You want more answers or you want to continue? No, it's okay. मैं बताता हूँ। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन बनाया। रामकृष्ण मिशन क्या काम करती है? वो बच्चों को पढ़ाती है, लोगों को मदद करती है, लोगों को हेल्थ सर्विसेज देती है। तो ये सोशल प्रेन्योर में आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा हेवी हो रहा है, मैं हल्के में बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, गर्मी की छुट्टी है और आप लोग घर में बैठे हुए हो, आपने सोचा कि चलो लोगों की मदद करते हैं। आपने घर के सामने आपने एक स्टॉल लगाया और आपने बोला कि मैं नींबू पानी बेचूंगा। तो नींबू पानी बेचने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बताओ? यस कुलदीप। Can't hear you. Ron Vikram. हमें नींबू पानी बेचने के लिए ग्लासेस, नींबू, बैनर और एक अच्छी दुकान चाहिए होगी। अच्छा, साइंटिस्ट सनव झा, साइंटिस्ट से पूछते हैं। Sir, for a lemonade stall, we need the lemonade and the money jar to collect the money we get. Your voice is cracking, Sanav. Okay, Shanvi. Sir, lemon water, sugar stall and glasses. Okay, very good.
Yes, Shova. सर हमें नींबू पानी बनाने के लिए नींबू, पानी, ग्लासेस, शुगर और एक अच्छा बैनर और एक स्टॉल चाहिए होता है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, लवली आंसर। तो थैंक यू सर। ओके, तो नींबू पानी बनाने के लिए आपके पास यू हैव द इंग्रेडिएंट्स टू मेक द नींबू पानी। अब आपने देखा कि नींबू अरे ग्लास को बेचने मेरा कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है वो 10 रुपीज आ रहा है, तो आपने इसमें लगा दिया कि मैं इसमें 5 रुपीज का प्रॉफिट कमाऊंगा और ये 15 रुपए में मैं बेचूंगा, और आपने पूरे दिन में 100 ग्लासेस बेचे एंड यू अर्न 500 रुपीज। सो इसमें क्या हो गया, आपके प्रॉफिट भी आ गया और आपने लोगों को हेल्प भी किया। अगर कोई भी आइडिया अगर लोगों के नीड को फुलफिल नहीं करता है तो वो एग्जाम्पल, आपके पास एक आपके घर में जो ट्यूबलाइट है, ठीक है, उसका कीमत है से फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और उस कॉस्ट को 250 रुपए से कम करके 150 रुपए कर दिया, तो आपके ट्यूबलाइट का सेल ज्यादा होगा या फिर मार्केट में जो 250 रुपए है उसका सेल ज्यादा होगा? बताओ। सर हमारे वाले का ज्यादा सेल प्राइस होगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। क्यों? क्योंकि आपने कॉस्ट को कम कर दिया है, और कॉस्ट को बहुत ज्यादा अमाउंट से कम कर दिया, 100 रुपीज लेस कर दिया है, तो एक कॉस्ट प्राइस कम हो गया, उससे वो एक नया इनोवेशन हो गया। दूसरी एक काम और भी कर सकते हो, आपने अगर एक ट्यूबलाइट से एक छोटा सा कमरा उसी 250 रुपए में अगर एक ही कमरा का लाइटिंग हो सकता है, आपने उसको इतना पावरफुल कर दिया कि उसके हाफ ही ट्यूबलाइट से पूरा रूम अगर ब्राइट हो जाए, तो वो भी एक इनोवेशन हो गया। इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? वो क्या करते हैं? बच्चे इशारा करके बताओ सारे। हाँ, गुड। और विराट कोहली क्या करता है? गुड, वेरी गुड। और शाहरुख खान क्या करता है? इशारा करके बताओ। हाँ, लुक एट रॉन विक्रम। वेरी रॉन विक्रम को देखो। लवली, लवली, लवली। अरे वाह। सो ये तीन ऐसे जो लोग आजकल फेमस होते हैं, सब अपना बिजनेस खोल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर का अराउंड 10 से 12 बिजनेसेस हैं। एक का नाम है स्मैश एंटरटेनमेंट, एक है स्पिनी, एक है एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। वैसे ही विराट कोहली का एक कंपनी है, गारमेंट्स का कंपनी, उसका नाम है रॉन्ग। हाउ डू यू स्पेल रॉन्ग? बताओ। इसमें ट्विस्ट है, ये WROGN है, ठीक है। विराट कोहली ने भी अपना बिजनेस खोल दिया, सचिन तेंदुलकर ने भी बिजनेस खोल दिया, शाहरुख खान के तो बिजनेस का तो नाम सबको पता ही होगा। किसको पता है? बताओ बताओ। सर आई गेस बायजूस। बायजूस, वेरी गुड। बायजूस में ही हैज इन्वेस्टेड। सबसे बड़ा उनका है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। वो जो भी फिल्म बनाते हैं वो रेड चिलीज कंपनी है उनकी,
वो उसके थ्रू बनाते हैं, तो ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। तो जो भी आजकल मार्केट में है, बड़े लोग हैं, वो सब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। क्यों? एक तो लोगों को सर्विस दे पाए, प्लस अपने लिए प्रॉफिट भी कमा पाए। ठीक है, अब एक बात बताओ, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए एक बंदे में? बताओ। क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्वालिटीज होने चाहिए किसी में, बताओ। फिजिकल हैंड, पहले से बहुत से हैंड रेज किए हुए हैं। हाँ, एशवी। सो हम लोग जो बंदा एक एक्टर या कुछ एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसको पहला क्वालिटी इसके अंदर होना चाहिए, उसको अच्छे से एक्ट करना आना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कि उसको अच्छे से, मतलब कि उनको अच्छे से सब लोग के साथ बिहेव करना चाहिए और रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उनने जब दूसरों को रिस्पेक्ट दिया तो उनके पास भी फिर से रिस्पेक्ट आया। वेरी गुड आंसर। बट मैं ये पूछ रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या होना चाहिए? बिजनेस, अपना बिजनेस खोलने के लिए उस पर्सन में क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्वालिटीज होने चाहिए, बताओ। समर्थ। Yes, sir. Any person who want to be an entrepreneur need a sharp mind and a nice calculating mind to calculate the profit and loss, and he need to be creative and a nice understanding, and he need to be have a nice understanding of the business. वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। और बताओ, और क्या होना चाहिए? वेरी गुड आंसर। यस सर। सर, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक ह्यूमन बीइंग के पास शार्प माइंड होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब प्रॉफिट कमाना है और कहाँ कमाना और कैसे कमाते हैं। उसे अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से डिस्प्ले करना आना चाहिए, ताकि ज्यादा लोग उसकी फोटोज को वो कैसे डिस्प्ले है और फैंसी चीज को देख के ज्यादा अट्रैक्ट हुए, और उसकी टोन को बहुत कैची होना चाहिए, मतलब कन्विंसिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। इसी वजह से वो लोगों को कन्विंस कर पाएगा कि आओ मेरा प्रोडक्ट बेचो, वेरी गुड, खरीदो। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। और कोई? एरिका। यस सर। सर, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक आदमी का शार्प माइंड होना चाहिए, बिजनेस का थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए, और उसके पास उसको अच्छी मैथ्स आनी होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाए। ओके। मेरे को तो मैथ्स एकदम नहीं आता, तो मैथ्स तो मैं तो बहुत वीक था मैथ्स में, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। मैं मैथ्स में बहुत वीक था। तो चलो, गुड आंसर, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। और कुछ लोगों ने चैट पे भी लिखा है। हाँ, अच्छा। आइडिया, वीर ने लिखा है आइडिया करने का हिम्मत होना चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। वेरी गुड। और वी हैव वन मोर हैंड। मैं एक और हैंड लेता हूँ, वो है, देखते हैं कोई फ्रेश सा चेहरा किसी का दिखता है तो, जो अभी अभी हाथ उठाया है। अच्छा, जो मुझे फ्रेश चेहरा दिखा वो भाग गया तुरंत। अच्छा। गुंजन सहारिया। सर, उसके पास हिम्मत होना चाहिए। वेरी गुड। हिम्मत से क्या हिम्मत का मतलब बताओ पहले, यहाँ पे हिम्मत का मतलब बताओ। वेरी गुड आंसर। हिम्मत मतलब वो उसमें साहस होना चाहिए कि मैं अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। वन आंसर इज फार साइटेडनेस, किसी ने लिखा है, एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मीशा पांडे। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज एंड हिम्मत दोनों सेम हैं। आपको रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए कि आप रिस्क ले पाओ, बिकॉज आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आपका से फॉर एग्जांपल जॉब था, आपने जॉब छोड़ दिया,
जॉब छोड़ने के बाद आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है ना। इफ यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली और पूरा फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो यू हैव टू टेक अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। चल अब मैं बताता हूं आपको क्या होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए परसिवियरेंस, लगे रहो, छोड़ना मत, आप जरूर सफल होगे। स्वामी जी ने भी कहा था ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू रीच योर गोल। आप छोड़ना मत, जुटे रहो उस पे, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी। बहुत बच्चों ने बोला है ऑनेस्टी, वेरी गुड। आप जब एक प्रोडक्ट बनाते हो, आपने कोई कमोडिटी बना और आपने उस We lost you. है कोई We किसी we lost you for a few seconds actually. अच्छा आपका वॉइस चला गया था कुछ। अच्छा, am I back? Am I Yeah, audible now? yes, Okay, yes. okay. दूसरा फैक्टर है इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन बोलता है कि मैंने एक ऐसा कोम्ब डिस्कवर किया है जिसको टच करने, जिसको अगर आपने अपने सर पे लगाया तो एक इंसान जिसके सर में कोई बाल नहीं है वो बाल हो जाएगा, बाल उग जाएंगे और लोग खरीद लेते हैं। ऐसा कभी हो सकता है जिसके सर में बाल ना हो और किसी ने कोम से टच कर दिया और बाल हो गया, बाल उग गए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है, वो अपने सामान को बेचने के लिए झूठ बोल रहा है। ऐसा बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आप जब प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको सब कुछ सच सच बोलना चाहिए। यू मस्ट गिव वेरी ऑनेस्ट रिपोर्ट्स अबाउट योर प्रोडक्ट, और आप देखो फिर आपका प्रोडक्ट कैसे धड़ाधड़ बिकता है। ठीक है, अच्छा। एक और फैक्ट है कि आपने अपना प्रोडक्ट जो बहुत जरूरी है, से फॉर एग्जांपल आपने कोई दवाई बनाई है जिससे बच्चों को कभी तबीयत खराब नहीं होगा, जो अगर बच्चे अगर उसको खाते हैं या पीते हैं उससे बच्चों को कभी तबीयत खराब नहीं होगा, उसका कीमत बहुत ज्यादा होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए? बोलो। सर उसका कीमत कम होना चाहिए। वेरी गुड, कीमत कम होना चाहिए, वेरी गुड आंसर। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रहे हो, तो अगर किसी ने उसका कीमत बहुत ज्यादा कर दिया तो बहुत कम बच्चे खरीद पाएंगे, बहुत कम बच्चों के पेरेंट्स उसको वो मेडिसिन खरीद पाएंगे, है ना। Have we lost him? Yes, sir. His voice is not coming. Just a second. ओके ओके ठीक है, अभी आ जाएंगे। सब रेस्टलेस मत हो जाना।
क्या क्या समझ में आया अभी तक? कुछ आया समझ में या कुछ बहुत ज्यादा टफ हो गया समझना कि क्या चल रहा है ये सब? ऐसा लग रहा है कि क्या ये बिजनेस बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम तो स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे लग रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या केवल बिजनेस करना ही है? हाँ कृषा, तो क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब? सर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब है कि एक क्रिएटिव माइंड कुछ इन्वेंट करना, मतलब ये सबकी हेल्प भी करना। राइट। और क्या करना, उस क्रिएटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करके फिर जब हम क्रिएट करेंगे तो उससे क्या करना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट आइडिया जो हमने क्रिएट किया है और उससे हमने कुछ बनाया है, तो अल्टीमेटली उससे क्या करेंगे? शानवी? सर सानवी सानवी, ओके। टू हेल्प पीपल। टू हेल्प पीपल। मेरा नेट चला गया क्या? एम आई हियर? Now you are audible, sir. Oh, internet is little tricky today. Let Can you hear me now? Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, वो अभी अभी उनका लाइट का प्रॉब्लम हो गया शायद, हिज रिकनेक्टिंग, आ जाएंगे। ओके तो अभी हमने उन्होंने आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई हैं, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंड उन्होंने फिर डिफरेंट एग्जाम्पल भी दिए आपको। ही टोल्ड अबाउट सम पीपल हु हैव नो कनेक्शन विद बिजनेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के किसी टॉप बिजनेस की बात करेंगे, कुछ जैसे हम देखते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, टीवी में या न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन के बारे में बात होता है। कोई कोई किसी एक टॉप बिजनेसमैन का कोई नाम बताएगा? एनीवन? किसी ने अगर सुना हो? यस। Sir, the top businessmen of India are like Mukesh Ambani, the founder of Jio, Reliance, and and Ratan Tata, who was an founder, who is handling the business of their father and grandfather, the Tata Group. ओके, गुड। और उनके अलावा, अच्छा एक तो ये तो एक Thank you, बिजनेसमैन sir. हो गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कुछ कंपनीज के बारे में सुना है? कुछ नई नई कंपनीज जो आजकल आपके आसपास आप देखते हो, किसी कोई लोगोस Yes, sir. देखते Yes, sir. हो? किसी और से पूछते हैं एक बार, चलो अभी समर्थ वेट, लेट मी रीच आउट टू समवन एल्स। किसको पूछे हैं? किसने हाथ खड़ा किया है? कौन है ये जो हाथ खड़ा करके खा भी रहा है? ओके, रेयांश सिंह इज देयर, यस। any other company और any business इसके अलावा जो अभी उन्होंने बताया समर्थ ने? सर स्पेस एक्स। स्पेस एक्स, वाह, कोई बताएगा स्पेस एक्स का कौन है? स्पेस एक्स को कौन चलाता है? हु इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी? कौन बताएगा भाई? और ये कंपनी क्या करती है? सर इलॉन मस्क, ही इज अ बिलियनियर। ओके, और क्या करती है स्पेस एक्स? बताओ कोई। कृषा से पूछें, कृषा को पता है स्पेस एक्स क्या करता है? नहीं, प्रीतम को पता है। प्रीतम बताओ। हाँ सर। स्पेस एक्स क्या करता है बताओ। मैं इसलिए खाद खड़ा नहीं किया था, मतलब मैं एक न्यू कंपनी दिखा है इसलिए। हाँ बताओ ना, फिर कहाँ है, दिखाओ। कंपनी तो इधर नहीं है। उस कंपनी का नाम क्या आपको याद नहीं है? भूल गया। कोई बात नहीं। अच्छा, ही इज कॉलिंग, वेट।
Again, no. Okay, wait. Okay, he is here. Wait. Am I audible? Yes. Good. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए इन अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हमारे पास 5-6 क्वालिटीज आगे हैं। अब हम अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमको किसी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ, हु इज इंडियाज रिचेस्ट मैन? बताओ कौन? सर एनॉनमस। नहीं, इंडिया का, इंडिया। सर आई डोंट नो। ओके, इंडिया का रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इज मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी के फादर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपने मुकेश अंबानी के बारे में तो सुना होगा, बट मुकेश अंबानी के फादर के बारे में किसी ने सुना है? उनका नाम था धीरूभाई अंबानी। और धीरूभाई अंबानी क्या काम करते थे? एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे गाड़ियों में। और उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मेहनत करते करते उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा कर दी, जिनको उनके बच्चों ने और भी अच्छा कर दिया। एंड नाउ मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ओके। अब लोग बताओ कि एक किसी को, कोई अगर एंटरप्रेन्योर जैसे बनना चाहता है, he will need somebody to guide him, है ना? कोई अपने आप तो अकेला कर नहीं पाता है, कोई ना कोई गाइड तो बहुत जरूरत पड़ती है सबको। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का गाइड कौन थे, बताओ? Yes, I am giving you permission. Unmute yourself. The guide of Swami Vivekananda is Sri Ramakrishna. Very good answer, very good. And I remember only the name of Ramakrishna. अच्छा, there is another person. Anyone knows? माँ शारदा। देखा आप सबने स्टोरी तो सुना था ना, हमने जो स्टोरी देखा था फर्स्ट पार्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद वीडियो जो हमने देखा था, उसमें था ना आप? चलो कोई बात नहीं। तो माँ शारदा ने बहुत एनकरेज किया स्वामी जी को टू सेट अप रामकृष्ण मिशन, और रामकृष्ण मिशन ने इतना अच्छा काम किया है। अच्छा, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? अच्छा बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, मेंटर कौन था? जैसा आ रहा हूँ। चाणक्य। वेरी गुड, चाणक्य। वेरी गुड आंसर। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए किसी बहुत अच्छे मेंटर या गुरु का साथ होना बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं,
स्कूल में आपके टीचर्स गाइड करते हैं, आपके सोशल क्लब में आपको IQF गाइड करती है, वैसे ही हर एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। मेंटर उसको गाइड करेगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एकदम बुद्धू है, उसको कुछ नहीं पता, उसको पता है, लेकिन एक मेंटोर होने से उसको गाइडेंस मिलती है। कि मैं बहुत बार क्या होता है कि मैं ये, आप लोग सोचते हैं ना कि मैं रोटी खाऊं या चावल खाऊं, बर्गर खाऊं या केक खाऊं, आप लोग सोचते हो ना, और तब आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं कि नहीं बर्गर खा लो या छोले भटूरे खा लो। अ- अ- गर्मियों की छुट्टी में साइंस पढ़ूं या मैथ्स पढ़ूं पहले। तो वैसे ही एक मेंटोर जो होता है वो उस एंटरप्रेन्योर को गाइड करता है, और एक एंटरप्रेन्योर उस गाइडेंस से सक्सेस उसको मिलता है। और and the entrepreneur has to respect the mentor, and the mentor also respects the entrepreneur, because दोनों एक ही चक्के के पुर्जे हैं। एक जना नहीं होगा तो दूसरे जने का कोई फायदा नहीं है, वाइसा वर्सा। ठीक है, अच्छा अभी आप बताओ, एक गेम खेले? आर यू रेडी फॉर अ गेम? ओके, यार चलो आपको 10 मिनट मिलेगा। आप लोग एक टॉपिक बनाओ कि हाउ टू मेक अ यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम एनी वेस्ट पेपर। 10 मिनट मिलेगा आपको, आप इसको लिखो और फिर सर को दे देना, पंकज सर को दे देना। कर पाओगे? 10 मिनट्स है, वेरी गुड। इंडिपेंडेंटली आप सोचो, कोई भी बिजनेस आइडिया सोचो फ्रॉम वेस्ट पेपर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एनी क्वेश्चंस? किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ, द क्वेश्चन इज, आपको 10 मिनट्स है आपके पास, आप एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाओ, हाउ टू कन्वर्ट अ बिजनेस आइडिया फ्रॉम वेस्ट पेपर। एक बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हो आप वेस्ट पेपर से? क्या बना सकते हो आप कागज में एक पूरा थोड़ा सा 4-5 लाइंस का एक प्रपोजल बना सकते हो। वो चीज जो बनाओगे उसका एडवांटेज क्या है, उसमें खर्चा कितना है, उसका यूज क्या है, ठीक है, एंड हाउ डज इट हेल्प द एनवायरमेंट। बच्चों को आ गया समझ में? क्वेश्चंस हैं तो आप पूछो एक बार, अगर पूछो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। Sir, I don't have a question, sir. I have a business idea on this. हाँ तो बनाओ राइट इट बनाओ, डाउन। राइट इट डाउन, उसको लिखो। Okay. वेरी गुड। एंजल, सर इसे अब इस टाइम तो नहीं बनाना है ना, मतलब एक बना के दिखाना तो नहीं है ना ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, आप जस्ट लिखो कि क्या बिजनेस हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। प्रीति, सर हम लोग वेस्ट पेपर से लिखो स्मार्ट लिखो, बना सकते बोलो हैं। मत, बोलो मत, बोलो मत, लिखो बोलो मत, बेटा। लिखो 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 लिखो। कोई कॉपी कर लेगा आपका, लिखो।
सोच समझ के ठंडे दिमाग में आराम से कैसे बनाओगे, उसमें कितना खर्चा होगा, उसको कैसे बनाओगे, कैसे बेचोगे, वो कैसे हेल्प करेगा लोगों को और एनवायरनमेंट को कैसे हेल्प करेगा। You are the future of India. Yes, Pritam. हेलो। आइडिया बोलना नहीं है। आइडिया किसी के साथ डिस्कस अभी बोलोगे नहीं, आप लिखकर पंकज सर को भेज देना, ईमेल करके, जैसा भी हो, ठीक है। और जिसका आइडिया सबसे अच्छा होगा उसको कुछ मिलेगा। Riyansh has a question, I think so. Yes, Riyansh. यस सर। सर हमारे आइडिया से जरूरी प्रॉफिट कमाना चाहिए या सोशली भी कोई काम कर सकते हैं? It can be both. It can be both or anyone. आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो, सोशल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। बट वाइबल होना चाहिए, मतलब ये कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो आप ऐसा कुछ लिखो कि जो कर ही नहीं सकते। ठीक है, ओके सर। गुड। विशा कुछ पूछना? यस सर, दैट आपने जैसे बोला था कि हमें एक वेस्ट पेपर से सोचना है कि एक चीज बनानी है, तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं ना कि वेस्ट पेपर से नहीं ये भी बेटा, लोगों का फायदा हो सकता है। हाँ कुछ भी, हाँ लिखो लिखो, आपको जो भी बिजनेस आइडिया सूझता है आप लिखो, बट वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, अपना आइडिया किसी को बोलना मत।
रॉन विक्रम आपका हो गया? No, sir. I want to ask a question. पूछो। सर हमको प्रॉफिट भी लिखना पड़ेगा क्या? हाँ जी, अगर सोशलप्रेन्योर नहीं है, सोशल वर्क के लिए नहीं है, तो प्रॉफिट तो लिखना पड़ेगा। कितना होगा तभी तो आप काम करोगे। से फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप उसको कैसे चलाओगे, कंपनी को कैसे चलाओगे? प्रॉफिट नहीं होगा तो बताओ। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी? अगर से फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देने के लिए आपको तो पढ़ाई करके जाना पड़ेगा ना। अगर आप पढ़ाई करके नहीं जाओगे तो आप एग्जाम कैसे दोगे? ऐसे ही। उन्नी का कुछ पूछना है? सर इसमें इसमें प्रॉफिट किस टाइप का होएगा? प्रॉफिट किस तरह का होता है पहले बताओ। सर मैं उस टाइम क्लास में थी, मेरे फोन अवेलेबल नहीं था, तो आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉफिट के बारे में? ओके, प्रॉफिट क्या होता है? जैसे आपका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, आपने एक कोम बनाया 100 रुपीज का, ठीक है, और आपने उसको 120 रुपीज में बेचा, तो डिफरेंस कितना हुआ? 20 रुपीज। ये 20 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस आपने जो पैसा लगाया उस सामान को बनाने के लिए, और तो जिस सर अगर कोई नेबरहुड में हेल्प करने के लिए चीज हो तो उसका हाँ, भी प्रॉफिट होगा? नहीं नहीं, वो फिर सोशलप्रेन्योर होगा। वो अब सोशल वर्क कर रहे हो, वो बिजनेस नहीं होगा, वो अब हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सर। हाँ, प्राची चौहान। प्राची चौहान कुछ पूछना है? यस, वीर सिंह। Sir, I have written the answers in the chat box. नहीं आप ना पंकज जी इसको कैसे ये अगर आपके पास आता है फिर करेंगे ना। Sorry, I got a call actually. Yes. I think chat box में kids have started sharing their ideas. Chat box में आने लग गया है। ठीक है, तो किसी ने तो भेज दिया है बना के। ठीक है, उसको कोलेट करके फिर जस्ट द आइडिया, और पूरा उनको कुछ लिखना भी है उस पर, टेक्स्ट लिखना है ना। हाँ, लिखा हुआ है बच्चों थोड़ा ने। सा, हाँ, टेक्स्ट लिखना है। ओके। यस, आई हैव गॉट वन आइडिया, एकदम आ गया।
I have Ananya Verma is saying I have a doubt. Yes, Ananya, पूछो. Where is Ananya? Yes, someone is also asking. Gayatri. Please ask, please. पूछिए. Prachi. Gayatri. सर मैं फोटो मार के रखा हूँ, लेकिन किस व्हाट्सएप पर भेजूं? हम लोग का 2 नंबर है. आप किसी भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हो. ओके सर. सर कौन सा नंबर पे? अमल सर. हाँ, किसी भी नंबर पे भेज दो बेटा. ओके सर. यस प्राची. Prachi, you can speak now. Okay, Devansh. Yes, Can I say my idea this time? Can't hear you properly. अब बताओ, दोबारा से पूछो. देवांश. अनम्यूट करो बेटा. Can I say my idea? Can I see? Can I say my idea? Have you shared that? Yes. Okay. अच्छा, आप मुझे भेजते जा रहे हो साथ साथ. Sir, my idea is I make paper dough with paper and make statue and I sell them online. Okay, I have received it. ठीक है. ठीक है, ठीक है. I have received it. Okay. Priyanshu. Yes sir, sir I wanted to ask sir, को जो हमारा आइडिया है वो आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके भेजना है. हाँ, you can click a picture and send. Okay sir. Sanav. Yes sir, I'm saying that I have sent my idea. Okay. On Have WhatsApp. you received? Yes sir, have you received it? Okay, with some drawing and all. Is this the one? No sir, I haven't drawn anything. Okay. Okay, I got that. Yes. You have sent me a text, Okay sir. right? Yes, I got that. I'm getting a lot of pictures actually, so it is difficult right now for me to keep a pace. उसमें आप लोग अपना नाम भी तो लिखो, पता कैसे चलेगा मुझे? मैसेज के नीचे अपना नाम लिखो. नाम, स्कूल और क्लास सेक्शन. ये किसने मुझे भेजा है? I have received a lot of pictures but नाम नहीं है उसमें. बहुत कुछ आ रहा है. ठीक है. I think इनको ऐसे जज करना will be little difficult. तो ये तो आप ही जज कर सकते हैं. हाँ हाँ, हम लोग, हाँ, ये आप लोग ना हमको भेज देना, हम लोग जज कर लेंगे. आपको मैं भेजूंगा तो आप जज करना इनको. तो इसलिए बच्चे नाम वाम अपना अच्छे से लिखो. उस पेज पे ही लिखो नाम, अलग से मत लिखो. उस पेज पे ही नाम लिख दो आप अपना.
then it will be easy actually. When we forward that image, then your name will also get forwarded along with the image. Otherwise, it will be difficult if you put your name in a different thread. You just write your name on it and just you can forward. Yes, Arav. सर हमें अपने आइडियाज को व्हाट्सएप में भेजना है या फिर हमें उनको जूम मीटिंग में बोलना है? व्हाट्सएप में भेजना है अभी. सी व्हाट सर वाज ट्राइंग टू टेल यू. सर वाज सेइंग दैट अभी उन्होंने आपको जो बैकग्राउंड दिया है, जो हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे ही इज सेइंग you come up with an idea how you can turn those papers, recycled papers, into something useful and make a business idea. Now when you understand कि अच्छा मैं इसे ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, then you make a business idea, small अपने उसमें point बना के 4-5 pointer बना के you can write your name, okay, and then you can click a picture and forward that picture on this WhatsApp number, and then we will forward it further for evaluation. ठीक है? Yes sir, I have made my idea. I will send you. Yes, भेज दो. Aishvi. Sir, I'm not understanding where to send. Because if I send it in the WhatsApp, it's not allowing me to send. WhatsApp ग्रुप में जो एडमिन है उनको भेज दो आप, जो एडमिन के नंबर्स है ना. Yes sir. उनमें फॉरवर्ड कर दो. Okay sir. Yes. Anyone else would like to ask? Pritam. बोलो प्रीतम. Okay. हाँ सर. Yes, you have raised the hand. हाँ. हाँ, आगे बताओ. हाँ मैंने आपको फोटो मार के दिया है. ठीक है, फोटो मार के दिया. ओके. मुझे मिला है. ठीक है, ओके. फोटो को मारो मत, उससे कोई नया आइडिया बनाओ. ओके. फोटो खींच के दे दिया. अच्छा ठीक है, समझ गया मैं. ठीक है, गुड. अच्छे से लिखना, अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखना. हाँ. ओके, रूहानी का. Send. Sir, I have sent. ओके, गुड The गुड picture. गुड. देखो जो बच्चों ने फटक से भेज रहे हैं, दैट्स गुड थिंग. That's very good. Very good. एक्टिविटी का मतलब है कि हमें अभी करना है और तुरंत आइडिया को लिख के भेज देना है. आइडियाज आर लाइक दिस. अगर आप उसको सोचते रहोगे तो देन you will forget lot of things. When you start thinking of something on some ideas, different ideas come. और आपका जो वो आइडिया होता है ना, एकदम से बहुत ही सॉलिड हो जाता है. अगर आप उसको बस सोचोगे दिमाग में, फिर बोले कल करूंगा, तो वो चला जाएगा दिमाग से. गुड. देखो मुझे कितने सारे मैसेज आ गए हैं. देखो, लुक एट दिस. सब भेज रहे हैं. रिदान. सर मैं कह रहा था हमें IQF के ग्रुप में भेजना है. नंबर में भेजना है बेटा, ग्रुप तो खुला नहीं है. आप अच्छा. एडमिन के नंबर पे भेज दो. ओके सर. ठीक है. और जो भी बच्चा कुछ भेज रहा है वो अपना नाम और क्लास जरूर लिखे. स्कूल भी लिख सकते हो. हाँ ठीक है, नाम भी लिख सकते हो तो पता चल जाता है. गुड. और किसको पूछना है? यस रेयांश. Yes sir. Sir, I just want to tell you that I have sent you the idea and sir आप उसमें आइडिया देखते हो. सर मैं इसको लेना. सर राइटिंग इसमें गंदी है अभी थोड़ी. सर आई एम सेइंग कि राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है. राइटिंग. यस. चलो कोई बात नहीं, राइटिंग कोई बात. और कौन है? बाकी लोग जिनको कुछ नहीं है तो हैंड एक बार डाउन करो, तभी तो मैं पूछूंगा बाकी. इट बिकम्स इजी. यस गुनिका. Sir, I Yeah. sent you the image, but I also made some type of craft things. So, Okay. is that okay? That is absolutely okay. Absolutely okay. Let Good. me see. इमेज भेज दो आप.
इमेज भेज दो। ओके, गुनिका हैज सेंड इमेज। गुनिका ने इमेज पे ही वो किया हुआ है। गुनिका, पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर इज नॉट दैट clear, so maybe you can click where you have put the eraser. You can click clear picture because some text is missing. I can't read it properly because of the haziness. सब भेजने लग गए अब। पेपर पे ही नाम लिखना बच्चों। नेम पेपर पे ही लिखना, ओके? अदरवाइज वो पिक्चर फॉरवर्ड हो जाएगी तो नेम छूट जाएगा। यस, सनम ने क्या बनाया? साइंटिस्ट ने कौन सा आइडिया बनाया? Sir, I have written the name. ओके, ग्रेट। वेरी गुड। बाकी लोग जो और जो दूसरी विंडोज पे जो लोग हैं who are not showing their faces, at least they can also do it. सभी लोग आई होप कर रहे हैं ये एक्टिविटी। See, on an ideation level, something doesn't look really grand and great, but when your idea is simple as like turning paper into maybe some, I would say, some accessories or something, okay, then it itself can become a big idea. अगर इसमें किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ऐड हो गई तो डोंट यू थिंक दैट आई डोंट हैव एनी आइडिया, हाउ डू आई डू इट? You just try to bring your thoughts aligned and try to give your idea. जैसा भी है, सभी बच्चे चलो, जो दूसरी स्क्रीन में जो बैठे हैं सभी लोग चलो भेजो। निहारिका, मंथन, वान्या, जयश्री, गुंजन, तोमाकनील, मंथन, अनन्या, आश्वी, भार्गव, धन्यता, SVJ, जॉय प्रकाश, एनमी श्रीवास्तव, शोभा, अर्पिता, अदीश, बोकुल प्राण, देन वी हैव 3 लोग हो गए। ओके, जॉय प्रकाश। Sir, already sent. ऑलरेडी सेंट? Yes, sir. ओके, गुड। रोहान भेज दिया रिधान ने? सर मैं कह रहा था कि मैं 7 o'clock भेज सकता हूँ आपको। हाँ, भेज देना, ओके सर। भेज देना। बट खुद करना है, किसी से हेल्प मत लेना। रेयान सिंह का आ गया मेरे पास। ठीक है, आप अपने पास रखिएगा। ओके, वीर हैज अ क्वेश्चन, आई थिंक सो। वीर ने भेज दिया है। Yes sir, I have sent you in your WhatsApp. यस, रिसीव्ड। तोमाकनील, सर मैंने भी भेज दिया है व्हाट्सएप में, पर सर मैं 2 है। क्या लिखा है? ये कौन है? ये किसका है? सर ये कौन है? धन्यता गोगोई कौन है? वेयर इज धन्यता गोगोई? देवांश, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। धन्यता, आप एक बार अपना हैंड रेज करना। कहाँ पे हो आप? इधर हो? ये धन्यता, ओपन योर कैमरा। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है देवांश।
आप व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं भेजना है, आप एडमिन के नंबर पे भेजो। धन्यता को मैंने इसलिए बुलाया बिकॉज धन्यता ने मुझे जो भेजा है, मैं बस सबको उसकी राइटिंग दिखाना चाह रहा था। Oh, lovely. Very good. Look at this. Beautiful. ऐसा लग रहा है कि धन्यता ने कोई प्रिंटिंग कर दिया किसी से। अच्छी राइटिंग है धन्यता की। गुड, कीप इट अप। ओके, और किसने? शिवांश ने भी भेज दिया है। शिवांश ने तो बिल्कुल ग्राफिक्स के साथ बनाया है। गुड, नाइस कॉन्सेप्ट बनाया शिवांश ने। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सस्पेंस वो करता हूँ लोगों का, किसने क्या किया। वाओ, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। किसने बनाया है? मंथन ने। बताना नहीं है किसी को, मैं बस यहाँ से बोलूंगा। मंथन ने भी बड़ा अच्छा बनाया है। वेरी नाइस, फिगर बना के दिया है। अनिका ने भी अच्छा बनाया है। गुड गुड। और बाकी लोगों ने? रॉन विक्रम? Yes, sir. Sir, I will give to Amal sir WhatsApp number. श्योर श्योर। बाद में भेज ओके, आप लोग अपना इसको फिनिश करके आइडियाज को नंबर्स पे सेंड कर देना। जो हम लोगों ने 2 नंबर्स दिए हैं, किसी के भी नंबर पे कर सकते हो आप, और आज ही कर देना, सो दैट हम लोग आज ही एंट्रीज फॉरवर्ड कर दें आप लोगों की, ठीक है। और जो भी सर ने बोला है कि जो भी बेस्ट आइडियाज होंगे उनके लिए कुछ सरप्राइज होगा, एंड दैट दे विल लेट अस नो एंड वी विल इन्फॉर्म यू। ओवर टू सर। आयुष्वी का एक अच्छे से भेजना फोटो, अच्छा नहीं। Okay, बच्चों, now that you know the basics of entrepreneurship, you know क्या क्या qualities चाहिए, कैसे आप लोगों ने ये अभी ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात यू शुड नो इज कि कोई आपका आइडिया चोरी ना कर ले। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी किसी का अच्छा आइडिया है उसको हम पेटेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं? पेटेंट। आप ताकि वो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि रेयांश पहोजा ने ये चीज बनाया है, इसको कोई कॉपी नहीं करेगा, और अगर कोई कॉपी करेगा तो रेयांश आहूजा उसको पनिश कर सकता है, उससे फाइन ले सकता है, और जो फाइन देगा वो पैसा रेयांश के पास ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया जो फिजिकल है, उसके लिए हम बोलते हैं पेटेंट, उसके लिए हमको पेटेंट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर के लिए आपको चाहिए होता है कॉपीराइट। अगर आपने कोई स्टोरी लिखा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोई कोडिंग बनाया है, आप लोग कोडिंग करते हो ना? कोडिंग जानते हो आप लोग? कोडिंग क्या होती है? गुड।
तो अगर आपने कोई कोड बनाया है उसको आपने कॉपीराइट कर दिया तो कोई आपका कॉपीराइट चोरी नहीं कर सकेगा, लेकिन आप किसी और का पेटेंट खरीद सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, जो आइडिया आपके पास है वो आपने देखा किसी और ने बना लिया है वही आइडिया, तो आप उससे उसका पेटेंट खरीद कर आप वो चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, और आप अपना आइडिया जो पेटेंट किया है उसको भी आप बेच सकते हो। तो आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट और कॉपीराइट करना बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, गुड, इट वाज वेरी गुड इंटरैक्टिंग विथ यू, वेरी इंटेलिजेंट किड्स, IQF is doing an awesome job. Any questions? Please go ahead. If you have any questions, please go ahead. Yes. Sir, yes, sir. Sir, you just talk about copyright. Sir, I want to also add on that this comes under IPR Act, where we can charge penalty if anyone copies our idea. Very good, lovely, fantastic. Thank you, sir. And sir, I want to ask that, can we give more than one ideas? Yeah, you can. Okay. Achha, I have a question. Can idea be copyrighted? Idea can be copyrighted, but that is very, it has to be very, very specific to the point. Ideation आप copyright कर सकते हो, Okay. but उसके भी terms and conditions होते हैं, कितने period के लिए, because idea can come to anybody at any point of time. You and me can think about the same idea, जैसे say for example टेलीफोन का कॉन्सेप्ट ग्रैहम बेल ने बनाया और उसको लागू कर दिया, बट एक इंडियन साहब थे वेस्ट बंगाल से, उन्होंने पहले किया था टेलीफोन का आविष्कार, लेकिन वो उसको उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। Right. तो there's a time period and it has to be very specific. Okay, Arav is also asking question. Sir, I have a doubt. Yeah, please ask. Sir, can you tell what is the difference between copyright and trademark? Yeah, copyright and trademark are completely different. आप ट्रेडमार्क आप जो कॉपीराइट जो होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है। आप टेक्निकलिटीज में आपको इफ यू वांट आपको ऐसे समझा तो नहीं पाऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे। मैं आपको इफ यू कैन गिव मी योर ईमेल एड्रेस, मैं आपको लिख के समझा दूंगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चे भी है, उनको ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, वो मैं आप लोगों को लिख के बता दूंगा। Okay, sir. Copyright and trademark, absolutely fine. Okay, sir. Any other question? Reyansh Singh. Yes, Reyansh. Sir, do we need any qualification to become an entrepreneur? No. No qualifications. No qualification. Your idea has to be very good and you have to have backing. आपको पैसे चाहिए होंगे, you must have contacts to start your business. You must have a very good team to start your business, people whom you can trust. है ना, आपने किसी को ले लिया जो आपको बोला कि मेरे को भी ले लो, मैं आपके साथ काम करूंगा, वो आया कुछ दिन काम किया और उसके बाद आइडिया चुराकर चला गया। So you have to be very careful about whom you take, किसको लेते हो टीम में, किसको नहीं लेते हो। So you have to be a very good judge of people. As such, there is no qualification to be an entrepreneur. Okay, Aditya is also asking question. Please. Sir, from what age can we do business? At any point of time. Up to 18 साल तक, if you have a business, your parents or your guide will help you.
18 के बाद once you're an adult, you can start off on your own. Okay, sir. Ron Vikram. Sir, Yeah. I heard that patent is again published after 20 years. No. Patent takes time to get patented. बट आपने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया और आपने उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेटेंट करने के लिए दे दिया, तो गवर्नमेंट आपको एक डॉकेट नंबर देती है. तो डॉकेट नंबर इज सिंपल इनफ कि आपने गवर्नमेंट को दे दिया है ये प्रोडक्ट आपका है. सो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस वंस यू गेट द डॉकेट नंबर. और पेटेंट होने में टाइम लगता है, 10-15 साल लगता है, बिकॉज इंडियन पेटेंट ऑफिस में बहुत काम रहता है, लोग स्टाफ कम है. बट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. जैसे ही आपने पेटेंट फाइल कर दिया, आपको एक डॉकेट नंबर मिल जाएगा विद इन अ मंथ और सो. सो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. I think this particular all these things we cannot cover in one session. तो हम लोग अभी आइडिएशन लेवल पे चल रहे हैं. तो अभी जब आपका आइडिया जब हम सर के पास जाएगा, तो जो रिफाइन होंगे आइडियाज, फिर उनको शेप देने का काम होगा. ठीक है. तो अभी उतना आगे तक का आप सोचो मत. Yes, you should have basic information of what goes where and what all things are associated to anything when it comes to entrepreneurship. बट फर्स्ट अभी तो फिलहाल यू नीड टू जस्ट ओपन योर होराइजन. ओके, अपने आप को भी आइडिया लेवल पे भी कन्फाइन नहीं करना है किसी ने, बिकॉज ऑन आइडिया इज लाइक व्हाट. अभी आप एक आइडिया को लेके पकड़ के रहोगे जिंदगी भर, तो आप उसमें लगे ही रहोगे. अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो यू कैन हैव 1000 आइडियाज. एनीथिंग, यू हैव चांस, यू हैव टाइम. यू आर नॉट लाइक एन ओल्ड बिजनेसमैन. लाइक तुमको पता है ना, KFC की स्टोरी पता है किसी को? जो KFC कंपनी है, उनके जो फाउंडर थे, he started so many businesses and failed, miserably failed. And he failed in every aspect of his life: family, relationship, social status, social connection, businesses fail, everything failed. And when he started KFC, that time he was, I think, 50 plus or 60, I guess. तो वहां पे उन्होंने उस KFC को शुरू किया था, तब जाके वो इतना बड़ा एक कंपनी बन गया, और अभी इतना बड़ा कंपनी कि उसके हर जगह वो है. तो आइडिया तो कभी भी किसी को कभी भी आ सकता है. तो अभी आप अपने आप को एक आइडिया में कन्फाइन भी मत करो. इफ यू कैन थिंक ऑफ 1000 आइडियाज, थिंक ऑफ 1000 आइडियाज. या बच्चे हो अभी आप. and you keep on writing them. जैसे पंकज जी ने बोला था ना कि आप भूल जाओगे नहीं, तो अगर आपने उसको लिखा नहीं तो आप भूल जाओगे. ऐसा बहुत लोगों को होता है कि एकदम से आइडिया आया, बिजी थे, भूल गए, फिर जब याद करने की ट्राई किया, याद ही नहीं आया. तो आप जो भी आइडिया सोचोगे लिखो. और चलो मैं आपको बता देता हूँ, इफ यू हैव 2 minutes, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर में आ गया, म्यूजिक में आ गया. ट्रेडमार्क इज बेसिकली मेंट फॉर लोगोज हो गया किसी का, जैसे नाइकी का डायलॉग है, जस्ट डू इट. ये होता है ट्रेडमार्क. ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉपीराइट एंड अ ट्रेडमार्क. तो आपको ट्रेडमार्क भी, से फॉर एग्जांपल आपने कंपनी स्टार्ट किया, तो आपका जो लोगो है वो होगा, लोगो को भी आपको ट्रेडमार्क करना पड़ेगा, ताकि वो लोगो भी आपका कोई कॉपी ना कर ले. Sir, I want to show you something. Okay. Sir, just like discussing about entrepreneurship. Sir, there's a program going in my school called Tinglepreneur, basically little entrepreneurs. And sir, last year I won a prize on my. Very good, lovely. My idea got selected in top 100. Very good. And sir, this website also got me a prize money of 9,000 rupees. Very good. Thank you, sir. And children who are interested in working on ideas and
getting some inspiration from other children who are doing similar kind of stuff, then I will share a few websites with you on the WhatsApp group. Yeah. There are those resources that you can use, like वो math वाला हमने भेजा था, maths का जो था एक free resource that you can use it and you can just understand different concept of math using some figure and all. Similarly, there is one website where you can explore different ideas. You can study about other children who are doing some great work in terms of inventing something and then going ahead and copywriting it and getting the trademark and everything. तो आप लोगों को एक clarity हो जाएगा कि अगर हम लोग, for example, school में we participate in any such event where we have to create something out of some non-usable items, or you have to recycle something and create something, so those inspiration you can get, और उसमें आपको वो मिलेगा. और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अगर आपको फर्दर लेवल पे अगर आपको you need some assistance, then वो भी उस पे होगा. And moreover, sir is here, तो अभी आपके आइडिया जब उनके पास जाएंगे and if your ideas get select, then you can also reach out to them. Absolutely. We are there to help you. Kuch any help you require from our side, we are there to help you. Okay. Okay. So I think we should conclude session now because it's already 6:48 हो गया आज, तो बिल्कुल record हो गया है. But अच्छा है कि we had at least 50 participants जो थे वो after 6 थोड़ा सा decline आ गया था because of lot of things. North East में तो 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, बहुत पहले हो जाता है. तो I think it was good session. It was lovely session. Absolutely enjoyed. The kids are very smart, very intelligent. Yes. And they'll do very well in their lives. सारे बच्चे अगर सर को थैंक्स कहना चाहेंगे तो मैं उनको अनलॉक कर देता हूँ. एक साथ मुझे करना नहीं आता सबको अनलॉक. अमल सर कर देते हैं. अमल सर विल डू दैट. यस सर. एक साथ कर दो जरा सबको. पता नहीं कैसे करते हैं. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you for this wonderful session. Thank you. Bye bye, sir. Bye, sir. Excuse me, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye. God bless you. God bless you. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Okay, on Bye. behalf of everyone, on behalf of IQS and Vivek Shala, Excuse me, sir. Yeah. now Sir, I know another word for patent. Very good. Sir, patent is also intellectual property right. Exactly. Very right. एकदम सही बोला है आपने. okay, so thank you so much everyone for today's session. Especially thanks to our guest or our fellow or our friend. तो अभी तो हम लोगों ने से entrepreneurship के बारे में पूछा, but I keep asking a lot of things and he has got a lot of answers. You ask anything and he will have answer. So he is kind of person. And I hope you enjoyed today's session, and we will wait for your submissions. All these photographs which you are sending, we will forward these photographs to him, and they will get back to you. Entire team, they have got a lot of professional, all the expert people in their panel. So all your ideas will go to a refinery now. Okay, so refinery के बाद उस पे कुछ भी अगर कुछ plus minus, if they want to suggest anything, you can change it or beautify it, anything you want to do it, then you will get guidance from their end. Okay, we will let you know. And as sir has said, I think sir, your mic is you have to unmute yourself speaking. Thank you very much for giving us this opportunity. Team Strategize has been planning to work with kids for a very long time because they are the future of the country and the world. India is a small part of the world. The world is one family, and it's great. I'm privileged to have heard so many very bright students, and
India has a very bright future. It's safe in their hands. Very good. Best of luck. And thanks to IQ for doing such an awesome work. Lovely. Thank you. Thanks. Yes, sir. For coming. Thanks, Pankaj. Thank you. And Thanks, give my Amay. regards to your team members as well. Absolutely. Thank you. Give my thanks to them also. Thank you. Thank you, everyone. Okay. We'll see you tomorrow morning with a special session. Evening में पता है special session तो है ही कल. So we have to join. Okay. Bye. Take care, everyone. Thank you. Bye. Bye.